Recording in progress. Okay. Yes. Should I say good evening? No, good afternoon. Good afternoon to everyone. Okay, so after the completion of nuclear physics, I'm going to start here the last topic of your entire syllabus, that's the particle physics. Okay? And those who have not completed nuclear physics, please wait. First study the particle physics, then start the nuclear physics. Okay? Elementary particle physics. In this section, we are basically going to deal with some elementary particles, which is known till this date. सारा तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, but हाँ, most of the thing we will discuss by the criteria of some. Basically, you can say some in a very specific manner. Okay. And obviously, I have written elementary particle physics. That means the most of the things are very introductory here. ठीक है, there's nothing requisite knowledge you needed to be in the class. ठीक है. If you talk about the examination, one thing I want to tell you, in the net exam, you will get one question from here, at least. One question of 5 marks. Okay? And if you talk about the gate exam, sometime once or sometime one or two questions. That means if you say I would take 3 marks from the particle physics for the gate exam. Okay? All right. So let's start our content. If anyone wants to know about the books or some material sources, one thing I want to make sure, just follow my notes and don't go in the textbook part. ठीक है, इतना टाइम उनको उनको बोल रहा हूँ जिनका 20 दिन बाद एग्जाम है फिलहाल. ठीक है, जिनके पास टाइम है वो बिल्कुल जाके पढ़ सकते हैं. ठीक है. I will follow the book DJ Griffiths. ठीक है, for the particle physics. बाकी बुक्स तो बहुत है, बट Griffiths I guess sufficient है. ठीक है. So let's start the content. First of all, here we will discuss the 4 fundamental types of interaction in the world. कोई बताएगा? What are those? So air interaction, strong, weak, और चौथा? gravitation. Okay. So there are 4 fundamental interactions we have to discuss first. The first is gravitational interaction. Second is electromagnetic interaction. अभी एक की बात करेंगे thoroughly. The third is strong interaction. And the last is weak interaction.
So these are the four fundamental interaction which we have to discuss. And whatever particle we will discuss, they will basically exert by all any of these, we can say some fundamental interaction. ठीक है? किसी में EM strong होगा, किसी में weak EM होगा, ठीक है? Gravity की बात, gravitational की बात करते हैं अभी. So first of all, let's discuss the gravitational interaction. Okay? Just write down. Done? Okay? So put the heading gravitational interaction. It's a very obvious. हम इसको आई गेस क्लास 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? द फर्स्ट टाइम वी हैव एनकाउंटर्ड दैट व्हाट इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई भी दो मैसिव बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्रिएट करती हैं, राइट? ओके, एंड ड्यू टू द मास ऑफ द पार्टिकल दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन कम इनटू द पिक्चर. ठीक है? सो ये अगर कोई पूछे बेसिक रीजन क्या है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का, दैट इज द मास. हम पढ़ते भी हैं, दैट इज F इज इक्वल्स टू G minus G m1 m2 over r square, right? The gravitational force. So mass is the basic reason. That's why basically the gravitational interaction come into the picture. Okay? So write 1 or 2 lines. It exerts due to the mass. It exerts due to mass. Second point, whether the gravitational interaction is attractive or repulsive. Always attractive, right? Okay. It's always attractive in nature. Third point, whether this type of interaction will depend on the medium. No. No, sir. If you want, you can relate with the electrostatic force. Electrostatic force आप इसको relate करके देख सकते हो. हम क्या लिखते हैं? Force of interaction between the two charged particles. 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over r square. If you see this properly, this is the term which depend on the medium. We say that if we are using some different medium which has some other refractive index or something, then this function, this complete force basically has been changed. Okay? That's why this force basically depend on the medium, but this force does not depend on the medium. Just write down. It is independent of the medium. Independent of medium. Chalo. Look at here. Let's suppose there is mass m1 and at a distance r, and there is another mass m2, right? It has been seen on a microscopically level that these two masses interact with each other with some exchange particle, right? With some exchange particle. The exchange particle has been generated from here, and that exchange particle absorbed by the M2. And in the gravitational interaction, what is the exchange particle? Graviton is a exchange particle. यहाँ बहुत सारे नए नए वर्ड सुनने को मिलेंगे शायद आपको, तो एक दो क्लास का पेशेंस रखना, ठीक है? तो exchange particle is graviton. Graviton. क्या जानते हो आप लोग graviton के बारे में? ग्रेविटॉन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जा चुका है? नो. व्हाट इज स्पिन? नो, व्हाट इज इट्स स्पिन? ग्रेविटॉन्स नॉट 0, इट्स 2. स्पिन इज 2. ओके, जस्ट राइट डाउन. स्पिन ऑफ द ग्रेविटॉन इज 2.
सारे एक्सचेंज पार्टिकल बोसोनिक होंगे सारे, ठीक है। स्पिन इज 2 एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेस्ट मास इज अप्रोक्सीमेटली 0। बट एक्सपेरिमेंटली अभी ग्रेविटॉन को डिटेक्ट नहीं किया जा पाया है, ठीक है। ऑल द थिंग्स आर थ्योरेटिकल, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि व्हेन द टू मैसिव बॉडी मींस एनी बॉडी व्हिच हैज मास, if they are interacting each other, then there is some exchange particle which generated and that is absorbed by the some means next massive object, right? And okay, so the spin is 2 and the rest mass is 0. If you talk about the range of this interaction, what's the range of this interaction, this type of interaction? Infinity. Can anyone prove this? Okay, tell me how. Range को कैसे प्रूफ कर सकते हो कि इंफिनिटी होता है? See, let's suppose there is a graviton, that's an exchange particle has been generated, okay, and it has taken, let's suppose, delta t time. What of time? Delta t. डेल्टा टी टाइम में क्या हुआ, ये एक्सचेंज पार्टिकल m2 पर एब्सॉर्ब हुआ, ठीक है। सो व्हाट दैट डिस्टेंस दिस एक्सचेंज पार्टिकल इज गोइंग टू कवर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, एंड दैट डिस्टेंस विल बी द रेंज में द अपर लिमिट, आई एम टॉकिंग अबाउट द अपर लिमिट। सो व्हाट शुड बी द रेंज, द वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम, यही तो होगा ना। And all these exchange particles basically travel with the speed of light or comparable to the speed of light, ठीक है। If हम जब भी रेंज को लिखेंगे ना, रेंज को हम approximately लिखेंगे, that means the speed cannot be the c, but it is approximately c. हर एक पार्टिकल का सब अलग अलग होता है, right? But for the time being, I'm taking as a c, and the time is delta t. Now, how can we write this delta t? From Heisenberg uncertainty principle. So, from Heisenberg uncertainty principle, what we know? It is delta t approximately equal to h cut. That means delta t is approximately equal to h cut over delta e. इसका मतलब क्या है? That means when this mass m1 creating that exchange particle, okay, then on creating that exchange particle, this mass basically losing this much amount of energy. And which energy has been absorbed by this mass m2, that maintains the law of conservation of energy, ठीक है। So at the place of delta t, what we can write, it should be c h cut over delta e, and what should be the energy from the Einstein mass energy equivalence is equals to mc square, and what should be the mass of the exchange particles, ठीक है। So it should be c h cut over mass of exchange particle multiplied by c square. And what is the mass of the exchange particle? Approximately 0. That's why the range comes out approximately infinity. That's why we call the gravitational interaction as infinite range. How the law of conservation is maintained? Sorry? How the law of conservation is maintained? Which conservation? Energy conservation. This much amount of energy has been lost by this m1, and this much amount of energy has been gained by this m1. So total of, in the totality, if you see the system, energy is conserved. ठीक है? So the resting Yes, rest mass. All right? चलो, अब देखो, हम जो भी पार्टिकल का डिस्कशन करेंगे ना, आप देखोगे कि हम ज़्यादातर वीक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात करेंगे, हम ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करेंगे, हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात उतनी नहीं करेंगे, एंड द रीज़न इज द मास, देयर मास आर क्वाइट लो, क्वाइट लेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है दो पार्टिकल बीच में, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वी इग्नोर, टोटली इग्नोर, ठीक है। इसलिए कहीं भी आप शायद ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात नहीं करते हो, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात करते हो, राइट? जस्ट राइट डाउन।
Now the second is electromagnetic interaction. लिखो, लिख लिया? Second is electromagnetic interaction. Electromagnetic interaction. Okay, so this type of interaction exerts or come into the picture due to the charge on the particle. Okay, लिखो. The first point depends on charge. What should be the second point? It can be attractive, it can be repulsive. We have seen in the Coulomb's law. Whether this type of interaction will depend on the medium? Depends on medium. इसका justification अभी मैं दे चुका हूँ. Depends on medium. All right. This type of interaction also depend on the orientation of the charges. ये चार्ज किस तरह से ओरिएंट किए गए. याद करो डाइपोल. जब हम एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं तो कुछ और आता है, बाइसेक्टर पे निकालते हैं कुछ और आता है, रैंडम थीटा पे निकालते हैं तो कुछ और आता है, राइट? सो वी कैन से दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल. ठीक है. Now, what should be the range of this type of interaction? And what should be the exchange particle? It also basically holds the exchange particle nature. लिख लेना. It holds exchange particle nature. अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि एक्सचेंज पार्टिकल क्यों जनरेट हो रहा है, उसके लिए आपको किसी अदर डोमेन में जाना पड़ेगा. You have to study the Feynman diagram, the Feynman theory, and you have to study the quantum field theory. वहां पर आपको इसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाएगा कि किस वजह से एक्सचेंज पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं. ठीक है. ऑब्वियसली आप रिसर्च वगैरह में जो भी जाएगा हाई एनर्जी फिजिक्स में वो करेगा, उसको डेफिनेटली करेगा. एक्सचेंज पार्टिकल नेचर होल्ड्स. एंड व्हाट इज द एक्सचेंज पार्टिकल हियर? यहाँ पर एक्सचेंज पार्टिकल क्या होते हैं? व्हाट? Photons. Okay. There's a Q1, there's a Q2, and let's suppose the separation is R. And again, the exchange particle will be photon. And what should be the range? What should be the range of this interaction? Huh? What are you saying? Finite? How can you say the finite? देखो ध्यान से देखो, अब चारों इंटरेक्शन में हम यही एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं रेंज का. दिस इज फिक्स. सो C, H cat C, all are the constant, depend on the mass of the exchange particle. Just focus on the mass of the exchange particle. So what is the mass of the exchange particle? Photon. Photon का rest mass 0 लेते हैं ना. So what should be the range? इसलिए हम कहते हैं कि जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है ना, वो इनफाइनाइट रेंज के लिए वैलिड होता है. ठीक है. So range again will be the infinity. Okay. And what is the spin of photon? The spin of the photon? Photon is also a boson. पता है? तो अगर बोसॉन है तो स्पिन कैसी होनी चाहिए? इंटीग्रल स्पिन होनी चाहिए. एंड इट्स स्पिन इज 1. ठीक है. स्पिन इज 1.
right now. Put the heading strong interaction. लिख लिया ये? Third is strong interaction. Strong interaction. So, the strong interaction, you can say the strongest interaction in the nature. Okay? सबसे ज़्यादा strong होता है, strongest in nature. ठीक है? और इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? शॉर्ट रेंज। और चार्ज के बारे में अगर बात करें, इट शुड बी चार्ज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? Charge independent. शॉर्ट रेंज। तो ये थोड़ा थोड़ा किसकी तरफ बढ़ रहा है? जो जो न्यूक्लियर पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, दैट मीन्स द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना? शॉर्ट रेंज फोर्स, सो शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। मास, मास पे तो डिपेंड कर सकता है, एक्सचेंज पार्टिकल के मास पे डिपेंड करेगा, इसकी रेंज वगैरह डिपेंड करेगी। अब इसका इंट्रैक्शन अगर आप देखो तो इंट्रैक्शन तो आप एनर्जी के टर्म में बात कर सकते हो, बट मास कितना है? सभी का तो मास ऑलमोस्ट लाइटर ही होता है एक दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है? सो यू कैन से इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। यू कैन से ये उतना हैवी नहीं होता, वीक वाला ज़्यादा हैवी होता है। वीक का जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो ज़्यादा हैवी होता है। ये तो पायोन्स होते हैं, इनके एक्सचेंज पार्टिकल कौन होता है? पाई मेसॉन्स होता है ना। इट्स एक्सचेंज पार्टिकल इज पाई मेसॉन। लिखो, एक्सचेंज पार्टिकल इज पाई मेसॉन। अभी पाई मेसॉन क्या है, ये डब्ल्यू मेसॉन क्या है, ये सर सब क्या है? मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको एटलीस्ट 2 क्लास का वेट करना पड़ेगा। ठीक है? एक्सचेंज पार्टिकल इज पाई मेसॉन। Pi meson, and just write down the mass of the pi meson is 140 MeV by c square. Mass of the pi meson 140 MeV by c square. Just find out the range of this interaction. हमने पहले ही बोल दिया it's a short range. So what should be the order? What should be the femtometer, right? भाई जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, उसी के ऑर्डर के आसपास का होना चाहिए इसका ऑर्डर, राइट? जस्ट फाइंड आउट द रेंज एंड टेल मी व्हाट्स आर यू गेटिंग। अब तो फाइंड आउट कर लोगे ना, मास इज गिवन टू यू, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ h cut c। h cut c को MeV में ही रखना होगा। ठीक है? राइट द वैल्यू ऑफ h cut c, इसको याद कर लो, बहुत काम आएगा आगे। इट्स 197 MeV into FM। h cut c की, हाँ 197 MeV into FM। देखो जरा कितना आ रहा है। एक चीज यहां पर और मेंशन कर लेना, that it also depend on isospin and its third component। अभी आइसोस्पिन क्या होता है देखेंगे। 1.4 फेंटोमीटर के आसपास का रेंज आ रहा होगा, राइट? आर यू गेटिंग द सेम? The range is approximately 1.4 FM. Just look at this. Pentometer, 10 raised to power minus 15 मीटर। कितना कम रेंज हुआ। इसीलिए कहते हैं जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है, बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है?
मीडियम पे So डिपेंड। what is the spin of pions? What is the spin of pion? Just hold, Shalin, just hold for the 10 minutes. I'm going to write each and everything. Just wait. हर एक क्वांटम नंबर्स बताऊंगा क्योंकि क्वांटम नंबर्स का ही क्वेश्चन आना है आपके पास, और बिना क्वांटम नंबर्स के आप रिएक्शन वैलिड है, अलाउड है, नहीं अलाउड है, पता ही नहीं कर पाओगे. जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. हो गया? ऑलराइट. Put the heading weak interaction. And its third component, sorry, and its third component. हाँ, डिपेंड करेगा. मैं पूरा लिख देता हूँ. वेट अ मिनट. Depends on isospin and its third component. अच्छा, अगर जिन्होंने मेरी बातें सुनी हो उसका स्पिन बता भी सकते हैं अगर ध्यान से सुन रहे हो तो. इतना तो बता सकते हो ना कि ये कैसा नेचर का पार्टिकल है. बोसॉन नहीं है, अभी बताया था. ऑल द एक्सचेंज पार्टिकल आर ऑल द एक्सचेंज पार्टिकल आर बोसॉन्स डियर. सारे के सारे बोसॉन्स होते हैं. ठीक है, तो चाहे ग्रेविटॉन हो, फोटॉन हो, पाई मेसॉन हो, ग्लूऑन्स हो, डब्ल्यू मोसॉन हो, कुछ भी हो, ऑल आर द बोसॉन्स. ठीक है, अभी सबकी स्पिन में लिखाता हूँ, डोंट वरी. अब बोसॉन्स है तो इंटीजर स्पिन नहीं होगी. नाउ पुट द हेडिंग वीक इंटरेक्शन. फोर्थ वन, वीक इंटरेक्शन. अच्छा, देखने से ऐसा लग रहा है क्या कि वीक इंटरेक्शन बोल दिया मतलब सबसे ज्यादा वीक यही है? ऐसा है क्या? ऐसा किसी के दिमाग में आ रहा है? आ रहा है तो निकाल दो. सबसे ज्यादा वीक ये नहीं है. ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज वीकेस्ट. इसको वीक बोला जाता है, बट किसके, किसी के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट है ये. स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में ये वीक है, बट ये एक्चुअल में वीक नहीं है. अभी देखना. ठीक है, द वीकेस्ट इज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन. सो ऑलराइट, अगर बात आती है ये प्रेजेंट कहां पर होगा, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन यू कैन ऑब्जर्व इन द न्यूक्लियर डीके प्रोसेस. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन ऑब्जर्व इन द न्यूक्लियर डीके. जस्ट राइट डाउन. The nuclear decay. Like if you take an example of the beta decay, इसको पूरा करो जरा, इस रिएक्शन को पूरा कीजिए. सब भूलते जा रहे हैं, सब भूलते जा रहे हैं. और उससे नहीं पूछा था, उसे पीछे जाके बैठता है मेरी क्लास, तो रोस्ट कर दिया जाऊंगा मैं. ठीक है, देखो, जब न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर की क्लास में भी कि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ अ क्वार्क. डू यू रिमेंबर? न्यूट्रॉन किस क्वार्क से मिलकर बना हुआ है? यूडीडी, अप डाउन डाउन. ठीक है, देखो, अप डाउन डाउन, ये है न्यूट्रॉन. सर ये क्वार्क क्या है? ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्लास, बट प्लीज वेट तो करना होगा. ठीक है, क्वार्क मॉडल पे हम शायद तीसरी या चौथी क्लास में पहुंचेंगे. एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रोटॉन विच इज अप अप डाउन. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक डाउन क्वार्क यहाँ पर एक अप क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है, आप ये कह सकते हो, विद सम अदर पार्टिकल्स. ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं वो कौन होते हैं? It's called a W meson. ठीक है, this is your exchange particle. बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे. Exchange particles.
ठीक है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग लेकर आओगे घर से इसका आंसर। क्या हो गया? व्हाई द एक्सचेंज पार्टिकल आर बोसोनिक इन नेचर? बस मेरा इतना सा। व्हाई नॉट फर्मियंस? किसी को पता है इसका आंसर यहाँ पर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ। There is because if it's fermions, they will violate the conservation laws. Why is the which type of conservation laws? Like for example, fermions have spin. So if it is exchanged between the particles, spin will no longer conserve. Or So what's the problem to be? it also has spins as well. So what's the problem to being integral spin? वो भी कंजर्व हो जाएगा जाके उस साइड, उसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई इंटीग्रल स्पिन भी कंजर्व हो जाएगा, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? चलो इस क्वेश्चन का आंसर लेके आना, ट्राई करना, ठीक है। राइट द मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल W प्लस इज 80.35 MeV by c square, not GeV by c square, 80.35 Ge by c square, giga electron volt by c square. Find out the range. रेंज इसका फाइंड आउट करो जरा। मास ऑफ W, W में सोनी बोलते हैं इसको। सब आएगा सब आएगा सब आएगा, अभी तो शुरू हुआ है खेल, बस याद कर लेना इन सबको, क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स में ना लॉजिक से ज्यादा आपकी मेमोरी काम करने वाली है यहाँ पर। आपको कितने क्वांटम नंबर्स आप लर्न कर पा रहे हो, दैट्स गोइंग टू डिसाइड योर वेदर यू विल बी सॉल्व टू द क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, कितना आ रहा है रेंज इसका? हैं भैया, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतना छोटा तो रेंज नहीं होना चाहिए। 10 टू द पावर -18 मीटर का ऑर्डर होना चाहिए। यू तुमने FM नहीं बोला तो मैं तो 10 के पावर -3 समझूंगा ना, कि मैं -15 खुद से लगा लूं। रेंज शुड बी 10 टू द पावर -18 मीटर के ऑर्डर का होगा। ठीक है ठीक है, चलो ये एक जनरल बातें थी जो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे इंटरेक्शंस हो रहा है। ठीक है, नाउ कंप्लीट इट एंड कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Put the heading types of elementary particles. Types of elementary particle. यहाँ पर मैं एक टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप देखो ध्यान से। जैसे बना रहा हूँ इसको एक बार ऐसे बना लो, ठीक है, ऑलराइट। If you can remember this table, you can think that your 70% work has been done for the particle physics. और इजी है यार, मुझे भी पहले लगता था ये बहुत ज़्यादा अजीब सा है, टफ सा है, बट कुछ भी टफ नहीं है। चलो, सबसे पहले पार्टिकल को हम
दो तरीके में, मतलब दो टाइप में डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन. वन इज कॉल्ड द mesons and other is one is leptons, other is hadrons. mesons तो सुनेगा. One is leptons and other is hadrons. बनाते चलो साथ में. leptons and hadrons. ठीक है. leptons basically interact under the weak interaction and electromagnetic interaction. लिखो. लेप्टॉन्स के बगल में ऐसे लिख लो, इसके बगल में ऐसे ही. मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा इधर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. वीक एंड ईएम इंटरेक्शन, बस इतना. वीक एंड ईएम लिख दो, आगे समझ जाओगे आप क्या लिखा हुआ है. ठीक है. नाउ आते हैं और नीचे. नाउ दिस लेप्टॉन्स इज ऑफ अगेन 3 टाइप्स. Can anyone tell? बताओ बताओ बताओ, डरो मत. सभी को यहाँ कुछ नहीं आता है, सभी को सब कुछ आता है. इतना धीरे धीरे तुम लोग बोल रहे हो. हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलो, देखो, बिना हेजिटेट के बोलो. उससे सीखो बोलना. वो देखो पीछे बैठा है. देखो देखो देखो, वो ये एकदम सेट एग्जाम्पल है कि यू कैन से, भाई पढ़ाई लिखाई की बातें, यू कैन से एनीथिंग. एटलीस्ट इन माई क्लास. पूछ लो, पीछे बैठा हुआ है. हाँ, आप क्या कह रहे हो? नो वरीज, कोई बात नहीं. कंफ्यूजन से. इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स एंड टाउन्स, जिसको टाउस बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स एंड टाउ. जस्ट राइट डाउन. इसको टॉन भी बोला जाता है, टॉ भी बोला जाता है. ठीक है. ऑलराइट. एंड अगेन दिस इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन्स एंड टाउन्स, इन सबके भी अपने कुछ पार्ट्स कह लो, या और भी कुछ डिस्टिंग्विश पार्टिकल. कैसे? इलेक्ट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इसका एंटी पार्टिकल आएगा, दैट इज पॉजिट्रॉन. इसके साथ इलेक्ट्रॉन का एक न्यूट्रिनो आएगा और उसका एंटी न्यूट्रिनो आएगा. लिखो. ठीक है. सिमिलरली म्यूऑन्स के लिए क्या होगा? द म्यू माइनस म्यू प्लस न्यूट्रिनो ऑफ द म्यूऑन, राइट? म्यू एंड इट्स एंटी पार्टिकल. ठीक है. एंड सिमिलरली फॉर द टाउन्स, सो टाउ माइनस टाउ प्लस म्यू ऑफ द टाउ एंड इट्स एंटी पार्टिकल. बनाओ जरा, करो. इस सिंबल को क्या करेंगे? टॉ लिखा हुआ है. इसको इलेक्ट्रॉन में जो लास्ट में है, न्यूट्रिनो एंड एंटी. न्यूट्रिनो और उसका एंटी पार्ट एंटी न्यूट्रिनो. और ये म्यू का न्यूट्रिनो, म्यू का म्यूऑन का एंटी न्यूट्रिनो. ये टाउ का न्यूट्रिनो, टाउन का एंटी न्यूट्रिनो. राइट. चलो अब जरा हेड्रॉन्स की बात करते हैं. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ हेड्रॉन्स? मेसॉन्स एंड बैरियॉन्स. पहले बात करेंगे मेसॉन्स एंड बैरियॉन्स. चलो. In the mesons, there are again 3 types. What are those? Pions, that's the pi meson. W की बात बात. Chions, pions and eta. Eta?
ईटा लिखो। क्या हुआ? हेडोन साहब बात करते, सारी बात करते हैं, मैं से सब बात करते, रुक जाओ, एक एक करके सब आने दो, बीच में कुछ भी इंटरप्शन इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ अभी, जस्ट वेट। ये टेबल सबको याद होना जरूरी है, आई गेस बनाते समय याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, कौन कौन से होते हैं? पाइॉन्स, जिसको हम पाई मेसॉन्स भी बोलते हैं, अदर इज कायॉन्स, जिसको काई मेसॉन्स भी बोलते हैं, और ईटा, ईटा मेसॉन। सो वन इज पाई मेसॉन। तो पाई मेसॉन के भी अपने, बेसिकली पाई मेसॉन इज अ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन इट हैज अ 3 पार्ट्स, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। चेंज कर देते हैं, इट्स कॉल्ड द पाइॉन्स, ठीक है। नाम भी अगर चाहो तो लिख सकते हो ऊपर, जस्ट राइट द नेम पाइॉन्स या पाई मेसॉन्स, जो भी है। द सेकेंड इज कायॉन्स। कायॉन्स क्या होता है? डबलेट होता है, ट्रिपलेट होता है, सिंगलेट होता है, पता है? इट्स अ डबलेट, के प्लस एंड के जीरो। एंड द लास्ट इज ईटा मेसॉन। ईटा मेसॉन सिंगलेट ही होता है, ये बताएगा? ईटा जीरो, राइट? चलो अब बैरियंस की बात करते हैं। हो गया, बना लिया सबने? बना लो, इजी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विल एक्सटेंड द क्लास 10 मिनट्स, डोंट वरी। हाँ, डन। It has again two. What are those? Nucleons and hyperons. आराम आराम से चलेंगे, सब पार्टिकल्स लेके चलेंगे। And it has again four, you can say. चलो, न्यूक्लियॉन्स एंड हाइपरॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स के तो बारे में भाई सब लोग जानते हो, हमने पूरा एक महीना बिता दिया लगभग। न्यूक्लियॉन्स एंड अदर इज hyperons. What comes under the nucleons? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी कुछ आता है? नहीं, एंटी पार्टिकल्स तो आएगा। एंटी पार्टिकल्स क्या होता है प्रोटॉन का? सिर्फ न्यूक्लियॉन्स की बात करेंगे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दूसरे पेन से कर देते हैं। What about the hyperons? हाइपरॉन्स पता है किसी को क्या होते हैं? हाँ ठीक है, एक एक करके शुरुआत कहाँ से करो? सिग्मा से, वेरी गुड। चलो, 1, कितने होते हैं? 4 होते हैं ना? 2, 3, 4। आधे से ज्यादा तो इसका स्क्रीनशॉट ही ले लेंगे पक्का, 100%। चलो, सबसे पहले कौन आता है? सिग्मा। सिग्मा के कितने होते हैं? ट्रिपलेट होता है, ठीक है। सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो। इट्स अ ट्रिपलेट। देन कैस्केड। कैस्केड के कितने होते हैं?
दो कौन कौन से, +0 -0, -0। जो कैस्केड का साइन कुछ ऐसा होता है, कुछ ये साइन होता है कैस्केड का। थर्ड इज ओमेगा सिंगलेट, ओमेगा सिंगलेट, राइट, ओमेगा माइनस एंड लैम्डा 0। तो ये है आपके पास पूरा साइकिल, ठीक है। सर ये मास्को लेट नेटवर्क को क्या बोला है? देखो ये है सिग्मा, ये है कैस्केड, लेट्स कॉल द कैस्केड। नाम लिख लो सब लोग यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, जी आई एम राइटिंग हियर, डोंट वरी, इट्स अ सिग्मा, नाम लिखना तो जरूरी था, सिग्मा, लेट्स कॉल द कैस्केड, लेट्स कॉल द ओमेगा एंड लेट्स कॉल द लैम्डा। ठीक है, देखो भाई मुद्दे की बात, लेप्टॉन्स बैरियॉन्स आर द फर्मियॉन्स। क्या है मैंने कहा, लेप्टॉन्स बैरियॉन्स आर द फर्मियॉन्स एंड दिस मेसॉन्स आर द बोसॉन्स। यहीं पे लिख लो, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, एक ही शीट में सब कुछ आ जाना चाहिए। सो दीज आर योर फर्मियॉन्स, is fermions, baryons is also fermions, and these mesons are bosons। ठीक है, all right, now if you think so that if you can learn this chart it's enough, then it is your गलतफहमी। Still there are some quantum numbers। हाँ देखो, कहा था मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, देखो पीछे, ठीक है, नहीं हटूंगा। देखो सुन लो, the thing is the particle has been basically written in this form। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हर एक पार्टिकल का, ये सबसे पहले तो हम कंजर्वेशन लॉज को देखेंगे, दैट व्हाट आर दोज कंजर्वेशन लॉ व्हिच इज बाइंड टू बी अलाउड फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये तो कंजर्वेशन होना ही होना चाहिए, अगर इसमें से एक भी नहीं है दैट मीन्स नॉट अलाउड, ये रिएक्शन नॉट गोइंग टू बी अलाउड। बट देयर आर सम अदर क्वांटम नंबर्स, देयर आर सम अदर क्वांटिटीज व्हिच मे और मे नॉट बी कंजर्व। अगर वो कंजर्व नहीं भी होता है देन स्टिल वी कैन से ओके there is some possibility that the reaction may be allowed। देखेंगे क्या कंडीशन है। one more factor will come into the picture, that's the isospin। ठीक है, आइसोस्पिन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें अभी इसके बारे में। सो स्टार्ट करते हैं कल, मतलब नेक्स्ट बात करते हैं कल, ठीक है। 4 to 5 लेक्चर्स में भी हो जाना चाहिए, ठीक है। बट आज का होमवर्क क्या है आपका, प्लीज इसको लर्न कर लेना, अगर हो पाए तो हो जाएगा, इजी, इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। 2 बार 3 बार ध्यान से देखोगे हो जाएगा, इसको आप आज लर्न कर लेना। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। और जो नेट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वन इज द क्वार्क मॉडल एंड अदर इज कंजर्वेशन लॉ, इन विच 80-85% चांस that they will ask from the conservation law that which of the reaction is allowed and which of the reaction is not allowed. In your GATE exam, sometimes they ask from the quantum numbers, simple direct quantum numbers, let's suppose tell the strength of the sigma or the cascade, ऐसे question direct, ठीक है। so quantum numbers भी important है, बात करते हैं कल, चलो। Thank you, sir. okay।